Okay, so questions. I'm going to tell you the questions of the mean exercise by using the direct method, shortcut method and step deviation method. So exercise 21.1 in your book, there are some questions like up to question number 5, 1 to 5. These are basically use the formula, that is the one formula, the simple one, sigma x upon n, means sum of number of observation divided by number of observations. That you have done in class 9 also. But one question I will tell you, like question number 4. A part, the mean age of 33 students of a class is 13 years. Mean age of 33 students. So mean age is given. years means average of 33 students. But one girl leave the class, the mean becomes 12 whole 15 by 16 years. If one girl leave the class, so new mean is equal to 12 whole 15 by 16 years. This much. How to find the what is the age of the girl? So let age of the girl be x years. ये जरूरी भी नहीं है, but you will. How to find? First of all, you find the total age of all the girls, means all the 33 girls. So how to find the total age of all 33 girls? Multiply this 33 into 13. So total age of 33 girls is equal to 33 into 30. So this will be years. This is the 429 years is the total age of all 33 girls. Similarly, if one girl leave, अगर एक लड़की छोड़ती है क्लास ग्रुप को, तो इसका मतलब ये होगा now 32 girls are there. अब उनका जो एज है वो है तुम्हारा 12 whole 15 by 16. तो if now total age of 32 girls is equal to 32 into 12 whole 15 by 16. अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 207 by 16. 12, 16 to the and then 414 years. ये 33 गर्ल्स की एज है और ये 32 गर्ल्स की एज है. तो इसका मतलब कौन सी लड़की छोड़ी होगी? इसका मतलब if we subtract the ages of 33 girls and ages of 32 girls, तो you will get the age of that girl who leaves the group. तो इसमें लिख सकते हैं आगे, इसको भाई नोट कर लेना. So you can write here age of the girl who. सर बोर्ड दिख नहीं रहा है सर, बहुत रुक रहा है सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई. Who
429 minus 414 is equal to 15 years। ये 15 years है जिसमें कि 15 years is the age of that girl। This I am recording also, so I'll send afterwards. Now afterward I'm going to tell you the questions which are based on table, means frequency and the data observations. From question number 6 you can see that every question based on the table. So there are the similar type questions 6, 7, 8, 9, 10, 11 till 11 no class interval। तो पहले बिना क्लास इंटरवल के बताते हैं and then I will tell you the with class interval। तो क्वेश्चन नंबर जिसमें कि 7 या 8 हम ले लें, कुछ बड़े डाटा है। क्वेश्चन नंबर 8 numbers and we made the table like this। cumulative frequency, अच्छा one word is given cumulative frequency and the numbers are given। ये numbers है मतलब x हो गया और ये cumulative frequency हो गया। I'll tell you the what is the meaning of the cumulative frequency। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 and then the cumulative frequency 8, 18, 33, 40, 49, 55 and 60। ये cumulative frequency है। cumulative frequency का मतलब होता है कि जब कोई frequency column दिया गया हो उसको हम ऐड करते जाए in the previous frequency, तो वो हमें तैयार हो जाती है cumulative frequency। But from the cumulative frequency to the frequency table, if we want to convert in the frequency, it means we do the opposite case, means in place of addition we do the subtraction। तो कैसे subtraction करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे थर्ड कॉलम frequency का first element you write as it is 8, then 18 minus 8, subtract 18 minus 8, that will be the 10, then 33 minus 18, 15, then 40 minus 33, 7, मतलब subtract करना है, add करने के लिए, then 9, 49 minus 40, 55 minus 49, 6, and then in the last 60 minus 55, that is 5। This is the frequency। अब इस cumulative frequency का वर्क नहीं है। अब तुम्हारा वर्क कहाँ पे है? Frequency table से। And this x। Now you can apply any one method, direct method, shortcut method, step deviation method। तो हम direct method को अगर लेंगे तो क्या फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का होता है? सिग्मा fx upon sigma f। I have told that day I have told you the sigma fx upon sigma f and the shortcut method a plus sigma fd। तो कोई भी मेथड हम ले सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में बस ये है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन शॉर्टकट में थोड़ा कम हो जाएगा कैलकुलेशन। तो हम शॉर्टकट ले रहे हैं। फॉर शॉर्टकट मेथड यू हैव टू एज्यूम ए मीन। एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा। कहां से? ऑब्जर्वेशन से, यानी वेरिएट से, एक्स से। तो एक मीन को हमने एज्यूम कर लिया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने 63, दैट इज द ए एज्यूम मीन। अब ये
तुम्हें डी निकालना है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। फ्रॉम एवरी एक्स यू सब्ट्रैक्ट 63, तो 60 माइनस 63, 61 माइनस 62 माइनस 0, 64 माइनस 2 and 3. Okay, this and then multiply f into d. अब देखिए छोटा हो गया, जो हमको इसको मल्टीप्लाई करना था, अब हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई, तो काफी कैलकुलेशन कम हो जाता है। तो -24 -20 -15 0 9 12 and 50. Then formula is your m is equal to a plus sigma f d upon sigma f. This is the formula. अब फॉर्मूला पता है हमें, f इंटू डी सिग्मा मीन्स सम, तो इसको सम कर लो। और सम करते समय इस बात का ध्यान रखो कि साइन के साथ करना है, तो -15 + 15 कैंसिल हो गया, 20 and 24 that is -44 and this one 21, so 3 and 2 -23, it will be -23 and then sigma f you multiply this, add 60 is the f। अब ये तुम्हारे पास में आ गया सिग्मा f और ये -23, put in this formula, तो you will get in place of a 63 plus -23 डिवाइडेड बाई 60। अब जिस तरह से सॉल्व करना चाहो उस तरह से, चाहे इसको पहले डिवाइड कर दो, अदरवाइज टेक द एलसीएम एंड देन सिंपलीफाई। इन बोथ केसेस यू विल गेट आंसर सेम आंसर। अजय इन दिस केस यहां पे ये 60 से अगर हम डिवाइड, मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो शॉर्टकट मेथड से जो भी आंसर आएगा, इन दैट यू विल गेट द सेम आंसर इन डायरेक्ट मेथड आल्सो एंड इन स्टेप डिवीजन तो लगेगा नहीं बिकॉज इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, तो शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड से दोनों से यू विल गेट द सेम आंसर। और चाहे तो इसको एक बार हम करके भी दिखा सकते हैं कि हाउ टू गेट द, इसको अगर हम लें तो कितना आएगा, 63 पॉइंट समथिंग भाई आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं 62 पॉइंट, क्योंकि माइनस हो रहा है, तो 23 से 60 0.59 के आसपास आना चाहिए, 62.59। ओके, अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी करके दिखा सकते हैं, तो जो कि 62 पॉइंट ही आएगा। अब डायरेक्ट मेथड में यू डोंट नीड दिस वन, इसको ये नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं, सिर्फ क्या है f इंटू एक्स कर दो, f इंटू एक्स, 60 इंटू 8, 10 इंटू 61, 15 इंटू 930, 64 into 9, and then डायरेक्ट मेथड का टाइम बहुत लग जाएगा ना। yes, calculation, and then add this 617, थ्री 3757। अब 3757 है गया, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 3757 डिवाइडेड बाई 60 सिग्मा एफ। अब इसको तुम डिवाइड करो, देखो कितना आता है, तो 60
6 5 1 होंगे। देन 7 60 2 आ रहा है 2.6 एंड देन 60 5 6 मतलब देखो बिल्कुल अगर हम फ्रैक्शन में रखेंगे बिल्कुल सेम आएगा, कहीं कोई डिजिट का होगा ही नहीं, डेसिमल में भी नहीं होगा। तो इफ यू राइट इन फ्रैक्शन यू विल गेट द सेम वैल्यू एग्जैक्ट, तो देयर इज नो चेंज इन द आंसर्स, you will get the same answer whether you are applying the shortcut or direct method, but shortcut method is more convenient in comparison of the direct method, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन ज्यादा है, उसमें कम है। अब हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिसमें कि तुम्हें स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, एनीवन। In the class interval where it is given the class interval, like question number 14, number of patients are given and number of days are given। तो number of days को frequency माने और number of patients को ये माने क्लास इंटरवल, तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है, एंड देन 5 to 7, 9 to 5। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो द डाटा ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडिंग ए हॉस्पिटल इन ए मंथ इज गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडिंग द हॉस्पिटल इन द मंथ यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। इन्होंने कहा शॉर्टकट मेथड से निकालिए, मतलब ये लिखा हुआ है, बट यू कैन डू बाय द स्टेप डेविएशन आल्सो, यू कैन डू बाय द शॉर्ट डायरेक्ट मेथड आल्सो। हाउ टू फाइंड दिस? तो सबसे पहले तो तुम सिग्मा एफ जरूरत पड़ती है, इसको कर दो 30, दिस इज द सिग्मा एफ। अब हम निकालने जा रहे हैं इसमें व्हाट इज द स्टेप डेविएशन मेथड से, लेकिन फॉर दैट यू नीड द x, सबसे पहले x निकालना है क्लास इंटरवल में। आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड द x, x का मतलब है कि इन द क्लास मार्क, मतलब मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, तो मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल निकाल लो। 15, 25, 35, 45, 55, 65। In the question it is given take assumed mean as 45, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया तो तुम वही लेना, ओके। हम दूसरा ले रहे हैं, जब एग्जामिनेशन में आएगा तो क्वेश्चन में 45 मेंशन किया या 35 तो यू विल टेक दैट वन ओनली, क्योंकि वो फिक्स हो गया। बट यू कैन इफ यू डू ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, जैसे 35 भी ले लिया तो वही आंसर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे हमने 35 लिया मान लो ए, अब क्या निकालना पड़ेगा डी, x माइनस ए, तो 15 माइनस 35 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30, थोड़ा इजी हो जाता है। अब हमको निकालना है u, स्टेप डेविएशन में u होता है ना, जो m इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, और u हमने बताया था, तो u इज इक्वल टू d अपॉन i, एंड व्हाट इज i? i इज क्लास साइज, i जो है हमारा वो क्लास साइज है। तो क्लास साइज को अगर हम करेंगे इसमें तो डिवाइड करें, क्लास साइज क्या है 10 है हमारा, तो -20/10 दैट इज -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड देन f into u,
अब f इंटू यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो -10 -2 0 9 4 15 और सिग्मा f इंटू यू 16 विद साइन, ये आ गया। अच्छा, हमारे ख्याल से कल हमने ये फॉर्मूला बताया था, लेकिन बाय मिस्टेक इसमें i से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, या i से मल्टीप्लाई भी होगा, एक मिनट, हाँ, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द i आल्सो, ये अभी हम सही कर देंगे उसमें वीडियो में भी हमने, या उसको डिलीट, क्योंकि ये फॉर्मूले में इंटू i होता है, इंटू क्लास साइज। अब इसमें वैल्यू रखो m निकालने के लिए, तो व्हाट इज a 35 प्लस सिग्मा f u 16, i मींस 10, सिग्मा f मींस 30, जो भी लिखा हो, एंड देन सिंप्लीफाई दिस, तो 105 प्लस 16 बाई 3 आर 121 बाई 3 आर 3 4 0.33, ये है, दिस इज द मीन 40.33. तो if you take the assumed mean 45, then also you will get same, कोई भी ले उसमें सेम ही मिलेगा। तो दिस इज द वे टू फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसी तरह से शॉर्टकट से भी बताया और डायरेक्ट